Good evening class. In last video we were studying the morphological structure of flowering plants and we have discussed the last class the phyllotaxy and that was the last topic, but today we are going to discuss some more properties of flower because this chapter is totally based on the flower structures. And before starting we have discussed that the root system, shoot system and many more things we have discussed also. Okay, so coming to the next, we have to discuss that the modification of leaves. Okay, लास्ट टॉपिक में हमने देखा फाइलोटैक्सी में कैसा अरेंजमेंट था, बट हियर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आर जनरली डिफरेंट क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ जो लीव्स होते हैं वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं. सो फर्स्टली मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स के मॉडिफिकेशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है टेंड्रिल्स और दूसरा होता है थ्रोन्स. वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. सो टेंड्रिल्स मींस टेंडल्स, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था टेंडल्स मतलब ये जो घुमावदार होते हैं, दैट इज अ स्पाइरली स्ट्रक्चर एंड दैट इज हेल्प फॉर क्लाइंबिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी ये क्लाइंबिंग का यूज करते हैं जनरली एक जगह से दूसरे मतलब प्लांट्स के ऊपर. सो दैट इज कॉल्ड द क्लाइंबिंग एंड मोस्टली वी हैव सीन इन पी. हम पी के केस में ऐसा देखते हैं. ठीक है. सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात करते हैं. सो इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है टेंड्रिल्स है. टेंड्रिल्स we have discussed before also, and last part is spine. Some of the plants are generally cacti, or we know that cactus generally consist the different types of very spine like structure on their leaves pattern. cactus का जो leaves होते हैं उनके ऊपर में जो structures होते हैं that is called as thrones या spines कहते हैं, and they generally act as a protecting layer. And also most important part, next we are going to discuss the Australian acacia, because in NCERT it is given that Australian acacia is a special leaves. In this it is a very small. ऑस्ट्रेलियन एकासिया एक ऐसा लीव्स है जो काफी छोटा होता है एंड देयर लाइफ स्पैन इज आल्सो शॉर्ट. उनकी लाइफ स्पैन भी काफी छोटी होती है बट शॉर्ट लिव्ड. बट फर्दर इनका जो पेटियोल होता है, एंड वी हैव डिस्कस पेटियोल, लेमिना, पल्विनस, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इन दिस पेटियोल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वे एज अ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो इनका जो पेटियोल होता है, वी नो दैट the several leaves generally perform the photosynthesis process, but here petiole is self regulating the process of photosynthesis. So this is the different task for the leaves. यानी modification of leaves में कुछ ऐसे leaves होते हैं या leaves के अलावा जो petioles होते हैं वो भी photosynthesis के process को carry out कर सकते हैं. So that is the important task which is generally consists Australian acacia. ठीक है. Australian acacia में देखने को मिलता है. It is a different varieties of leaves. ठीक है. So next we know that in modification of leaf we have to study the different things, like certain leaves are modified to trap insect to feed them. क्या होता है, कुछ ऐसे leaves होते हैं जो lead like structures होते हैं, जैसे we have to seen in so many places like pitcher plant. Okay, so pitcher plant की हम अगर बात करते हैं, so this structures like pitcher plant, ये pitcher plant का एक structures है और इनके ऊपर ऐसे जो है एक lead होते हैं. So when any insect when sit on that portion, automatically the cap will be closed. जैसे भी कोई भी insect जब इसके पास आके स्टिक होता है तो ऊपर की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है that is closed है. So in some of the varieties of plant section, certain leaves are modified to trap insect to feed them. ठीक है. पिक्चर प्लांट हो गए, ये क्या होते हैं, ये ऐसे मॉडिफाइड होते हैं कि वो जनरली किसी भी इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं. दे हैव ग्रेट पोटेंशियल टू ट्रैप एनी ऑर्गेनिज्म अ वेरी स्मॉल टाइप लाइक फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिलिया, ये सब जितने भी होते हैं उनको ये कैरी करते हैं और कैरी करने के बाद डाइजेस्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरी स्पेशल एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन दैट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स विल बी टोटली डिसॉल्व. ठीक है. आफ्टर दैट that pitcher plant absorb the whole material from their body. जितने भी materials वगैरह सबको वो absorb कर लेते हैं. So that is the modification of leaves. ये modification होते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो कुछ leaves होते हैं that is help to trap insect. It means that here what is the functioning role? लीफ जो हम मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, सो मोस्टली इनमें जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो लीव्स में ही हो रहा है. सो इनके जो लीव्स होते हैं काफी एडवांस फॉर्म में होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इनफ्लोरोसेंस. Inflorescence is an important topic. In this we have to discuss that the arrangement of flowers on the floral axis. मतलब किसी भी फ्लावर का एक फ्लोरल एक्सिस है जहां पर डिफरेंट क्या निकलते हैं, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स जो निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस. उसे हम कहते हैं इनफ्लोरोसेंस. मींस
द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी एक छोटी सी एक्सिस होगी किसी भी प्लांट्स में, वहीं से पूरे के पूरे फ्लावर्स जो है जनरली निकलते हैं, वेदर इट इज राइट साइड निकले या लेफ्ट साइड निकले, लेकिन हर एक फ्लावर का एक फ्लोरल एक्सिस होता है जहां से वो ओरिजिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, जिसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफ्लोरेसेंस इज टू टाइप्स। इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज रेसिमोस एंड सेकंड इज साइमोस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड साइमोस इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। व्हाट इज द रेसिमोस? रेसिमोस की बात करते हैं। सो रेसिमोस में इन दिस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। इनमें जो मेन एक्सिस होता है, सपोज इनमें जो मेन एक्सिस है, सपोज ये ऐसा ग्रोथ की है, ठीक है, इसके बाद फर्दर इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके बाद फर्दर इनमें ऐसी ग्रोथ देखने को मिलती है। मींस इनमें बेस जो ओल्ड होते हैं वो बेस की तरफ रहते हैं, और जो यंग निकलते जाते हैं वो एपिक्स में होते हैं। दैट इज द मोर डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता है, जनरली जो ओल्ड होते हैं उनके जस्ट एपिक्स पोर्शंस में यंग जो फ्लावर्स होते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद यंग फ्लावर्स और आएंगे, दैट इज कॉल्ड द रेसिमोस। एंड मोस्टली इन दिस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रोथ, यानी इसका जो मेन एक्सिस है वो हमेशा ग्रोथ करेगा, ये फर्दर ग्रोथ करेंगे, तो हमेशा इनमें ग्रोथ देखने को मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रेसिमोस। एंड लास्ट फ्लावर्स आर मॉडिफाइड लेटरली, और उसके जो फ्लावर्स हैं वो लेटरली फैशन में अरेंज्ड होते हैं। बट कमिंग टू द नेक्स्ट, साइमोस की बात करते हैं। सो साइमोस इन दिस मेन एक्सिस टर्मिनेट, इसका जो मेन एक्सिस है ये टर्मिनेट हो जाता है, इट मींस इट इज टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट पोर्शंस, इसी दैट पोर्शन से आपके अलग अलग फ्लावर्स जो हैं निकल आते हैं, मतलब ये फर्दर ग्रोथ नहीं करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है। वंस अगेन, इन दिस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स, इसमें हम रेसिमोस में क्या देख रहे थे, इनका जो मेन एक्सिस है ओल्ड, वो ग्रोथ करेगा, फर्दर यंग आएंगे, फर्दर ग्रोथ करेंगे, ये ओल्ड हो जाएगा, ये यंग हो जाएगा, ठीक है। सो लेकिन इनमें क्या होता है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाते हैं एंड फ्लावर्स जनरली बियर्स फ्रॉम दैट पोर्शन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस। एक और मेजर डिफरेंस है, इनमें ओल्ड जो है बेस पोर्शंस पे रहते हैं और यंग फ्लावर्स जो है वो जनरली एपिक्स पोर्शंस पे होते हैं। लेकिन साइमोस में डिफरेंट है, यंग पोर्शन बेस पोर्शंस में रहेंगे, ओल्ड वाले ऊपर की तरफ दिखते हैं, लेकिन वो वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ flowers. What is the meaning of flowers? As we know that flowers generally play a very important role because flower is the reproductive unit of any angiospermic plant. जितने भी angiosperm plants होते हैं उनका flower जो होता है वो reproductive part होता है, and reproductive part means play a very important role. Why? Because flower is the reproductive unit of any angiospermic plant, and we know that how many plants are flowers bearing and how many plants are non flowers. मतलब ऐसे कितने पौधे जिनमें flowers होते हैं, ऐसे कितने पौधे जिनमें flowers नहीं होते हैं. So we have discussed so many times angiosperm and gymnosperm. That is a very important topic, and most of the time the questions maybe arises 5 marks difference. ठीक है. So next, अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं, जनरली फ्लावर्स हैज ड्यूल नेचर, दो नेचर होते हैं, इट मे बी बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो दे कैरी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल एंड फीमेल, बोथ द वर्जन्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। एंड एमीसेक्सुअल की बात करते हैं, हैव ओनली वन, या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा, नॉट ओनली, ठीक है। एक इसमें से एंड्रोशियम या गाइनोशियम, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल की बात करते हैं, इट कैरीज बोथ द सेक्शन, एंड्रोशियम भी होंगे और गाइनोशियम भी होंगे, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाई मीन्स टू और यूनि मीन्स सिंगल। सो सिंगल अगर आपको कंफ्यूजन होगा, यूनि मीन्स सिंगल मतलब एक ही सेक्स होंगे, इट मे बी स्टेमन और पिस्टिल, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा, बिकॉज स्टेमन इज द मेल पार्ट of flower and pistil is the female part of flower. So most important, so many times this types of questions may be asked in PMT and NEET exams. Okay, so most of the students are generally unaware about that. Unisexual मतलब एक या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम, इनमें बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं, मेल है ना, एंड्रोशियम भी होते हैं, गाइनोशियम भी होते हैं। Okay, so next, depending upon the flowers of nature, flowers may be three types on the basis of their
डिवीजन पैटर्न, फ्लावर्स के जो डिवीजन पैटर्न्स होते हैं उसके हिसाब से फ्लावर्स तीन टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक? एक्टिनोमॉर्फिक मींस द फ्लावर्स हैज रेडियल सिमेट्री. अगर मैं बात करता हूं, सपोज दिस इज एन एग्जांपल्स ऑफ एनी स्टारफिश. सपोज ये एग्जांपल्स है स्टारफिश का. सो एक्टिनोमॉर्फिक मींस फ्लावर हैज रेडियल सिमेट्री, मींस धतूरा एंड मस्टर्ड. इन बोथ द प्लांट्स generally it carries actinomorphic. It means the division from any center position, okay, that is called actinomorphic. It means their body is divided into not an equal half, but it is divided into half segments. That is called actinomorphic or radial symmetry, okay. And next phase, zygomorphic. Zygomorphic का मतलब होता है the body is divided into two parts. First one is right and second one is left. That is called जाइगोमॉर्फिक. मोस्टली बीन और पी मटर वगैरह में देखने को मिलता है. सपोज दिस इज द एनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी सीड्स and zygomorphic means the body is divided into two parts. That is called bilateral symmetrical. It means it is the right and it is the left. So body is divided into right and left. This is called bilaterally symmetrical of any plane. किसी भी प्लेन से अगर हम इसे कट करेंगे, जब इसकी बॉडी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बायलैटरली. क्योंकि बॉडी जो है दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो रही है. बाई का मतलब होता है टू. सो दैट इज कॉल्ड बायलैटरली सिमेट्रिकल, ओके. एंड नाउ लास्ट फेज में अगर हम देखते हैं, सो लास्ट फेज कम टू द नेक्स्ट असिमेट्री. असिमेट्रिकल मतलब होता है कैन नॉट डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ्स. अगर कोई भी स्ट्रक्चर्स है, सपोज एक पौधा होता है कैना, ठीक है, ये पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स है एक. सो अगर इसको हम क्या करेंगे, जनरली किसी भी स्ट्रक्चर से अगर हम इसे काटेंगे तो इनकी जो बॉडी है वो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है. दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक. असिमेट्रिक का मतलब होता है, इट मींस दैट द बॉडी हाफ्स इज नॉट इक्वली डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर. यानी बॉडी हाफ्स इक्वली डिवाइडेड नहीं होते हैं. दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक. इसमें बॉडी राइट एंड लेफ्ट फॉर्म में दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इसमें अलग अलग डिवाइड होते हैं, बट इट इज नॉट डिफाइंड एज द पोर्शन शुड बी सिमिलर, जैसे धतूरा में या मस्टर्ड में, ठीक है. बहुत सारे जगह से ये कट सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री. इनका कोई फिक्स नहीं होता है, इधर से भी कटते हैं, इधर से भी कटते हैं, इधर से भी, ठीक है. बट जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं, या तो ये वर्टिकल होगा या तो ये हॉरिजॉन्टल होगा. It means the body is divided into right side and left side. Asymmetric means it is not divided in a proper way. Example की बात करते हैं, कहना it is given in NCERT book. Okay, so this is all about the flowers. Now we are going to discuss some more properties of flower section. Okay, so in this we have to discuss that the parts of flowers are generally different types, but most of the flowers parts are generally considered and totally based on four types. First calyx, second corolla, third androecium and fourth is gynoecium. Okay, उनके जो सेपल्स हैं, उनके जो पेटल्स हैं, उनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये चार पार्ट्स के ऊपर ही टोटली हमारा फ्लावर जो है बेस्ड है. ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज कैलिक्स. कैलिक्स मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेपल्स, जो जनरली which is generally attached with the thallus portion, जो thallus portion के साथ attached होते हैं, ठीक है. Suppose ये thallus portion है और इनके साथ जो पंखुड़ी टाइप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, that is called calyx. Most important, the outermost whole of the flower composed of sepals. ये sepals इनमें composed होते हैं and it may be गैमोसेपुलस, यानी सिंगल फॉर्म में भी होते हैं, एंड पॉलीसेपुलस मतलब मैनी फॉर्म्स में भी होते हैं. यानी सेपल्स एक भी हो सकते हैं और देयर इज मैनी मोर इन नंबर, या बहुत सारे भी हो सकते हैं. क्योंकि कोई भी फ्लावर्स जब ओरिजिनेट होता है, लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लोटस, तो जब लोटस के फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं, मतलब जो पत्तियां हैं, जब वो खिलती है तो उनके नीचे एक हरे कलर के सपोर्टर जैसे होते हैं. दैट इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स, उसे हम कैलिक्स कहते हैं. सेकेंड कोरोला. इट इज द कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, जो कि पेटल्स को कंपोज करके रखता है अपने पास. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड. जो पेटल्स होते हैं मींस पत्तियां, दैट इज आर ब्राइटली कलर्ड मतलब काफी चमकीले होते हैं, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं. पॉलिनेटर इन द सेंस ऑफ हनी बी, ड्रोसोफिलिया मेलेनेगोस्टर, इट इज एग्जांपल ऑफ फ्रूट फ्लाई. और भी बहुत सारे जो पॉलिनेटर्स एजेंट्स होते हैं जो फॉर टेकिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी शहद को लेने के लिए फ्लावर्स के पास अट्रैक्ट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज
पॉलिनेटर, उन्हें हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, जो जनरली कोरोला के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो उनकी पत्तियों के कलर्स को अट्रैक्ट होने के कारण होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पोर्शन एंड्रोसियम, वी नो दैट एंड्रोसियम मींस मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट मींस स्टेमन, ठीक है। एंड गाइनोसियम इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी किसी भी फीमेल का जो पार्ट जिसमें ओवरी होगा, पिस्टिल होगा, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम, इसमें फीमेल पार्ट आएंगे। एंड्रोसियम का मेल पार्ट जिसमें एंथर होगा, फिलामेंट होगा, जो कि कंबाइन होकर एक स्टेमन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समटाइम्स स्टेमन इज स्टेराइल, कुछ समय में मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो हैं लेकिन स्टेराइल होते हैं, मीन्स दे आर नॉट कैपेबल टू germinate their self young ones, that is called sterile and it is called as staminode, इसको हम staminode कहते हैं। it is not given your NCERT and NCERT but staminode means जब stamen sterile होते हैं means अपने young ones को पैदा नहीं कर पाते हैं, that is called means ये reproductive parts में participate करते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड नहीं हो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेमिनोड प्रोसेस। आफ्टर दैट स्टेमन्स कैन बी मोनोडेल्फस, मतलब सिंगल फॉर्म में भी होते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायोडेल्फस, मतलब डबल पेयर में भी होते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीडेल्फस, यानी स्टेमन सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, बंच में भी एंड ट्रिपल फॉर्म में भी होते हैं स्टेमन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पोर्शंस ऑफ ओवरी द फ्लावर कैन बी हाइपोगेमस। अब ओवरी जो हमारा बेस्ड होता है जनरली, सो उनके जो अरेंजमेंट है, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल है, सो बेस्ड ऑन द पोर्शन ऑफ ओवरी, ओवरी जनरली सिटेड हियर, ठीक है। सो ओवरी अगर यहाँ पे है एंड चला जा रीजन वगैरह जो भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, सो ओवरी इज फ्लावर कैन बी हाइपोगेमस। हाइपोगेमस अगर ओवरी हमको बहुत ही क्लियर कट और एडजेक्ट फॉर्म में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवरी इज सुपीरियर। इसका मतलब ओवरी जो है वो सुपीरियर है, काफी डेवलप फॉर्म में है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हमको ओवरी ज्यादा मेच्योर या प्री फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड पेरीगेमस और एपिगेमस कहते हैं, जिसमें ओवरी जो है पैक्ड होते हैं, दैट इज नॉट इन अ डेवलप्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड पेरीगेमस और एपिगेमस, ओके। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हेन द कार्पेल इज फ्यूज्ड, व्हेन द कार्पेल अगर फ्यूज्ड है, कार्पेल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, व्हेन कार्पेल इज फ्यूज्ड द ओवरी इज सेनकार्पस। अगर कार्पेल फ्यूज्ड है इनके साथ, दैट इज कॉल्ड ओवरी इज सेनकार्पस, एंड व्हेन द कार्पेल इज फ्री, अगर कार्पेल इनसे फ्री है, अलग है, दैट इज कॉल्ड द एपोकार्पस, ओके। सो मेनी टाइम्स this type of questions may be asked syncarpus and apocarpus. After that we are going to discuss the last portion of flower section. Flowers may be trimerous, यानी flowers we have already discussed, ये तीन patterns में भी होते हैं, ठीक है। Flowers may be trimerous and flowers may be tetramerous also. Tetra means four and flowers may be pentamerous also, means they are the appendages, means multiplication of 3, 4, 5। इसका मतलब इनके जो अपेंडेजेस होते हैं फ्लावर्स में भी 3 के मल्टीपल में भी होते हैं, फ्लावर्स जो है 4 के मल्टीपल में भी होते हैं, यानी 4 4 का पैटर्न होता है, एंड फ्लावर्स में भी पेंटामेरस, इसका मतलब 5 का भी पैटर्न्स होता है। सो दीज आर द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट शुड बी इन अ मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5, यानी इनके पैटर्न जो है वो 3, 4 और 5 के हिसाब से ही बेस्ड होने चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड द पेंटामेरस, टेट्रामेरस and trimerous, okay। So this is all about the plant section, but mostly flowers play a very important role because in this 4 section is very important: calyx, corolla, androecium and gynoecium, and so many times NPMT and NEET exams also stamen, pistil, ovary, style, these types of questions maybe create lots of confusion, so you have to read very well and go through this NCERT book and also cellular book, and if you get any confusion you can contact me. Thank you students.